आदाब नाजरीन, माई डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद और आप देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। हैदराबाद की पुरअमन फिजा को मकदर करने की कोशिश की जा रही है। मोइनाबाद के चिलकुर गांव में पीर के रोज चंद शरपसंद अनासिर ने रात की तारीकी में कुतुब शाही दौर की मस्जिद को शहीद कर दिया था, जिसकी वजह से मुसलमानों में शदीद बरहमी और गम की लहर दौड़ गई थी। इस वाक़े के बाद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने उसी जगह पर आलीशान मस्जिद तामीर करने का वादा किया है। अब जबकि हालात काबू में देखे जा रहे थे कि बजरंग दल के गुंडों ने शहीद मस्जिद की जगह मस्जिद की दोबारा तामीर पर एतराज़ करते हुए एहतजाज किया। नए राशन कार्ड की इजराई के ताल्लुक से वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने दिया कानून साज कौंसिल में बयान। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नए राशन कार्ड की इजराई से मुतालिक हुकूमत जल्द फैसला लेने वाली है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल वक्फे सवालात के दौरान अरकान कौंसिल की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नए राशन कार्ड की इजराई के लिए एक काबीनी सब कमेटी तश्कील दी जाएगी और ये कमेटी नए राशन कार्ड की इजराई का जायज़ा लेगी और राशन कार्ड की अहलियत का ताउन करेगी। इन्होंने कहा कि फिलवक्त रियासत में 79 लाख सफ़ेद राशन कार्ड है। इसके अलावा भी नए राशन कार्ड का मुतालबा है, क्योंकि BRS दौरे हुकूमत में नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए थे। Promise to provide new food security cards, ration cards, to all eligible BPL families in the state. However, that criteria for providing ration cards as a policy matter will be decided by the subcommittee afresh. The website for food security card is not open currently. So as per the procedure, the food security card applications which are to be received in the site are not received. However, number of applications have been received through various forums like Praja Palana, Prajavani, etc. and in different formats. See, applications received in CM Prajavani for fresh food security cards are 1944. T. No fresh food security cards are yet issued. Chairman sir, with your permission, I'll just add one or two things. ఈ ప్రభుత్వము కొత్త రేషన్ కార్డ్స్ ఇష్యూ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాము. గత 10 ఏళ్ల పాటు కొత్త రేషన్ కార్డులు ఇవ్వని సందర్భంగా చాలామంది నిరుపేద కుటుంబాలు ఈ రాష్ట్రంలో ఇబ్బంది పడుతున్నాయి. మా ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం రేషన్ కార్డ్స్ ఆరోగ్యశ్రీకి వేరు కార్డ్స్ ఇష్యూ చేయబోతున్నాము. రేషన్ కోసమే రేషన్ కార్డ్ ఉపయోగపడుతుంది. ఆరోగ్యశ్రీకి విడిగా సపరేట్గా కార్డ్ ఇష్యూ చేయబోతున్నాము. ఈ కొత్తగా ఇష్యూ చేసే రేషన్ కార్డ్కి రాష్ట్రంలో ఉన్న BPL కుటుంబాలందరికీ ఇష్యూ చేయబోతున్నాము. అదేవిధంగా ఆరోగ్యశ్రీ కార్డ్కి కొంత క్రైటీరియా పెట్టుకొని దాన్ని కూడా కొత్తగా కార్డ్స్ ఇష్యూ చేయబోతున్నాము. రేషన్ కార్డుకి ఏమి క్రైటీరియా, ఆరోగ్యశ్రీ కార్డుకి ఏం క్రైటీరియా అనేది క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత అందరి దగ్గర అప్లికేషన్ తీసుకొని అందరికీ కొత్త రేషన్ కార్డ్స్ ఇవ్వబోతున్నాము. अवाम के सज़ा देने के बावजूद भी BRS का रवैया तब्दील नहीं, रेवंत रेड्डी का बयान। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि पिछली हुकूमत में कई देहातों को पीने का पानी फराहम नहीं किया गया था। असम्बली में बजट सेशन के दूसरे दिन खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि तांडों को पंचायतों में तब्दील करने के लिए सहूलियत फराहम नहीं की गई। कई तांडों में सड़कों की सहूलतें भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो नज़रअंदाज किए गए तांडों को तरक्की देंगे, साथ ही तमाम मंडलों को पीने का पानी और बिजली फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी तालीम को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा और तांडों में बुनियादी ढांचे भी फराहम किए जाएंगे। కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విస్పష్టంగా మా నిరసన తెలుపదలుచుకున్నాం అధ్యక్ష. అందుకే మీ ద్వారా సభ్యుల అనుమతి ద్వారా నీతి ఆయోగ్ చైర్మన్ వచ్చేసి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో 27 తారీఖు నాడు నీతి ఆయోగ్ సమావేశం జరుగుతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర హక్కులకు భంగం కలిగించినందుకు, తెలంగాణకు రావాల్సిన నిధులను విడుదల చేయనందుకు, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇవ్వవలసిన అనుమతులు ఇవ్వనందుకు
నీతి ఆయోగ్ సమావేశాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా బహిష్కరిస్తున్నాము. ఈ బహిష్కరణను సభ మొత్తం ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించాలని తమరి ద్వారా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా అధ్యక్ష. మేము ప్రజాస్వామిక స్ఫూర్తిలో నిరసన తెలుపుతాం అధ్యక్ష. అందుకే నిర్దిష్టంగా విస్పష్టంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నిరసన తెలుపదలుచుకున్నది. నిరసనలో మొదటి భాగంగా 27 తారీఖు నాడు జరగబోయే ప్రధానమంత్రి నేతృత్వంలో జరిగే నీతి ఆయోగ్ సమావేశాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా బహిష్కరిస్తున్నాం. ఇది మా స్పష్టమైన నిర్ణయం అధ్యక్ష. हुकूमत तमाम तांडों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएगी, चीफ मिनिस्टर का बयान। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चारशंबे के रोज़ कहा कि इनकी हुकूमत रियासत के तमाम तांडों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएगी, जिनमें रोड, कंटे की वेटी, पीने के पानी और बरक़ी सरबराही शामिल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तमाम तांडों से जिन्हें पहले ही ग्राम पंचायत का मौक़ूफ़ दिया गया है या हालिया अयाम में ये मौक़ूफ़ दिया गया है, मुतालिका मंडल हेडक्वार्टर तक बीटी रोड्स की तनसीब अमल में लाने का भी फैसला किया गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर आज सुबह तैयारा रनवे पर फिसल जाने से पेश आने वाले हादसे में 18 लोगों की मौत होने की इत्तला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शौर्या एयरलाइंस का ये तैयारा काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भर रहा था। तैयारे में पायलट समेत 19 अफराद सवार थे, जिनमें से ज़्यादातर एयरलाइन का टेक्निकल अमला मौजूद था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मुकामी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे तैयारा टेक ऑफ के लिए रनवे पर आया। जैसे ही तैयारे ने रफ्तार पकड़ी, वो अचानक एक तरफ झुक गया और इसका बाजू ज़मीन से टकरा गया और इसके साथ ही तैयारे में भयानक आग लग गई। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके मोइनाबाद के गांव में मस्जिद शहीद करने के वाक़े ने एक तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर ली और बजरंग दल के एहतजाज के बाद वहां सूरत हाल कशीदा हो गई है, जिसके बाद मोइनाबाद में बैरूनी लोगों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। मौजूदा हालात के पेश नज़र साइबराबाद पुलिस ने मोइनाबाद में बाहर के लोगों के दाखिले पर पाबंदी आयद करते हुए इन अहकामात पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। साइबराबाद के कमिश्नर अविनाश मोहंती ने BNSS की दफ़ा 163 के तहत इम्तनाई अहकामात जारी किए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने BRS रुकन असम्बली तारक रामाराव को इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के ऑफिशियल ट्विटर पर एक पोस्ट जारी किया गया, जिसमें रेवंत रेड्डी और तारक रामाराव की तस्वीर शामिल है। इस पोस्ट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लिखा कि हर वक्त अवामी खिदमत में मसरूफ़ रहते हुए रियासत की तरक्की के लिए काम करने भगवान इन्हें अच्छी सेहत और लंबी उम्र अता करे, जिस पर तारक रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। सोने की कीमत में ज़बरदस्त कमी। मरकज़ की जानिब से आम बजट पेश करने के बाद सोने की कीमत में ज़बरदस्त गिरावट देखी गई। कीमती धात तकरीबन 4000 रुपये सस्ती हो गई। मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने मंगल को आम बजट पेश करते हुए कीमती मादनियात की दरामद ड्यूटी को 15% से कम करके 6% करने का ऐलान किया था। इसके बाद हिंदुस्तानी बाज़ार में सोने की कीमत में ज़बरदस्त गिरावट देखी गई है। इम्कान है कि सोने और दीगर कीमती धातों पर कस्टम ड्यूटी में कमी की वजह से जड़ धात की स्मगलिंग में कमी आएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की रिसर्च स्कॉलर शेख आयशा बरकस यूथ समिट 2024 के लिए मुंतखब। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की PhD स्कॉलर केमिस्ट्री शेख आयशा को बरकस यूथ समिट 2024 के लिए मंदूब के तौर पर मुंतखब किया गया है। वो प्रोफेसर वाई श्रीनिवास राव के तहत रिसर्च का काम कर रही है। वो 22 से 26 जुलाई तक रूस के शहर ओलियानोसिक में बर्क्स के यूथ मिनिस्टर सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। शादी से मना किया तो बेटे ने वालिद को ही मार डाला। उत्तर प्रदेश के ज़िले बस्ती के दबोलिया इलाके में पुलिस ने चारशंबे को बिहारी कत्ल वारदात का इंकशाफ करते हुए मुलजिम बेटे को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल SP OP सिंह ने बताया कि दबोलिया इलाके के सांडपुर गांव में खेत में सो रहे 60 साला बिहारी का कत्ल 11 जुलाई को कर दिया गया था। वाक़े का इंकशाफ करने के लिए पुलिस टीम तश्कील दी गई, जिसमें दबोलिया पुलिस और डॉग स्क्वाड ने वारदात का इंकशाफ करते हुए मुलजिम बेटे राजकुमार को वशीरगंज बाजार से चारशंबे को गिरफ्तार कर लिया।
और मुलजिम के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा स्नेहता की दफ़ा 103 के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया। Thanks for watching Telangana Today News. For more updates, subscribe our channel, like, comment, and don't forget to share.